Origin, the next one says, why doesn't Pakistan produce chefs like Ranveer Brar or iconic dishes like butter chicken? Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I'm writing to share my experience as a Lahori boy studying culinary arts in Ireland and the backlash I faced when I visited Pakistan during my midterm break. This email is not going to be a question but more of a rant. I was excited to come home, but the way my cousins and friends reacted to my career choice made me feel like I was a misfit in my own community. I've always been passionate about cooking, and I've dreamt of presenting Pakistani dishes catered to the Western and global palate. My dream is to make one dish from Pakistan which becomes as famous as butter chicken, and that Pakistani dishes don't remain under the umbrella of Indian cuisine. That is why I decided to pursue culinary arts. During my studies, I worked as a kitchen hand and even as a line cook while interning at a restaurant. These experiences have been nothing short of transformative, teaching me discipline, creativity, and teamwork. But when I shared this with my cousins, they burst out laughing. कढ़ाई बनाने वाला बन गया है was the first thing one of them said. Another added, handsome होता तो चाय वाला की तरह famous हो जाता तू, तेरा तो कोई future नहीं है. One of them, who happens to be a foodie, jokingly said, बिरयानी में आलू डालते हो या नहीं? When I shared my experience of learning Italian pasta recipes, another cousin chimed in, तुम वो लोग हो ना जो चाउमीन को पास्ता बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स अफगानी तंदूर वाले, आज से बर्तन की सफाई तेरे नाम was a given because washing dishes and making naan is the only thing a chef does. It wasn't just the jokes, it was the underlying mindset. They didn't see culinary arts as a legit career or tertiary education as a worthy investment in this field. यार ये सब टाइम पास वाले काम हैं, कोई असली डिग्री कर ले. They said as if I was wasting my potential. In contrast, my Indian classmates in Ireland have a completely different perspective. They take immense pride in pursuing culinary arts. They admire chefs like Ranveer Brar and Vikas Khanna, who have won Michelin stars and brought Indian cuisine to the global stage. They dream of making a name for themselves in the food industry, and their society fully supports them. Why is it that our society sees cooking as a household chore or something low status? It's disheartening to feel unsupported by your own people when you're trying to break stereotypes. I hope platforms like yours can help highlight these issues and encourage parents and young people to think beyond conventional career paths. Jazakallah for your time, Junaid bhai. Looking forward to hearing your thoughts on this. Warm regards. So, very nice email. एक भाई हैं जो कि आयरलैंड से culinary आर्ट्स में डिग्री कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन यही है कि इसको सही नहीं समझा जाता. जैसे अभी मैंने डंगर डॉक्टर वाली बात की, इस पर भी पहले मुझे 2 ईमेल्स आ चुकी हैं इनफैक्ट कि वेटरिनेरियन को पाकिस्तान में डंगर डॉक्टर कहा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती. हालांकि इट्स सच अ नोबल प्रोफेशन के यू आर हेल्पिंग आउट बेज़ुबान जानवर, मगर हमारे यहाँ वही कन्वेंशनल रोल्स हैं और उसी में हम उसी के गिर्द घूमना पसंद करते हैं. इनफैक्ट मैं पिछले दिनों यही सोच रहा था कि पाकिस्तानी मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट्स दुनिया में कितने हैं, एंड आई थिंक आई केम अक्रॉस जस्ट 1 or 2, बट आई डोंट थिंक दे आर एंटायरली पाकिस्तानी, बट पीपल कैन करेक्ट मी. आई थिंक एक लॉस एंजलिस में था, समवेयर इन अमेरिका, और एक और आया था. बट आर दे रियली पाकिस्तानी या फिर वो इंडियन डिस्गाइज पाकिस्तानी है या फिर a mix of both? So Michelin star क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता? So Michelin बेसिकली इट्स अ टायर कंपनी जिसका लोगो आपके सामने ही नज़र आ रहा है, राइट? सो जब ये टायर कंपनी नई नई बनी तो इनके टायर तो बड़े अच्छे थे. अब जिसने एक बार टायर ख़रीद लिया तो उसके तो अगले बार 10 साल बाद बारी आएगी या 5 साल बाद आएगी. तो हाउ डू दे सेल मोर टायर्स? तो उसमें उन्होंने शुरू की एक मैगज़ीन. उस ज़माने में ज़ाहिर सोशल मीडिया तो था नहीं, तो मैगज़ीन्स ही निकलते थे. तो मिचलिन ने मैगज़ीन निकालना शुरू किए and they started recommending restaurants कि what are the must have places in your vicinity, hot singles in your area होता है ना, वो वाली चीज़. मिचलिन स्टार का थॉट ये थी कि जितना दूर का हम रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे तो लोग जितना दूर गाड़ी चला के जाएंगे उनके टायर में वेयर एंड टेयर होगा, तो दे आर मोर लाइकली टू बाय मोर टायर्स. नाउ दिस इज़ द ब्रेन ऑफ पीपल 120 years ago. मार्केटिंग जीनियसेस, राइट? गाड़ी से मतलब एक टायर कंपनी का खाने से क्या लेना देना, लेकिन देखो आज उसका नाम चलता है आज तक. मिचलिन स्टार उसको कहती है इसलिए कि वो उसकी रेटिंग हर लिहाज से अच्छी है. और इस चीज़ को मैं हमेशा ये वर्ड गलत बोलता हूँ. सो प्लान्ड ऑब्सोलेंस फॉर एग्जांपल, वो यही होता है कि लाइक पहले ज़माने में जो बल्ब होते थे वो 5-6 साल चल जाया करते थे. फिर कंपनीज़ लाइक जनरल इलेक्ट्रिक, फिलिप्स और इस तरह की 2-3 और कंपनीज़ बैठ के सोचा कि भाई ये जो हम बल्ब बना रहे हैं ये 6 साल में बंदा एक बार ख़रीदेगा तो इससे तो हम लॉस में हो जाएंगे, तो हमें ऐसा बल्ब बनाना है कि लोग हर 3 महीने बाद ख़रीदें.
तो उन्होंने जानबूझ के छोटे वाले फिलामेंट वाले बनाए ताकि वो जल्दी ख़त्म हो और फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। विच इज़ वाई हर साल ये जो आपके फ़ोन्स होते हैं दे आर गुड इनफ टू रन फॉर 10 years, लेकिन ये अगले साल ही आपको ख़त्म हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वो जानबूझ के सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि इसको स्लो डाउन करती है और फिर अगला फ़ोन रेडी आ जाता है। तो फिर आप जब एप्पल के स्टोर जाते हो तो आप बोलते हो कि यार ये तो बड़ा तेज़ चल रहा है, हालांकि आपका भी उतना ही तेज़ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता इतना स्लो किया जाता है कि आपको डिफरेंस फील नहीं होता कि यार ब्राउज़र इतनी तेज़ देर से क्यों खुल रहा है। फिर जब आप नए फ़ोन पे देखते हो तेज़ खुल रहा है तो आपका माइंड फ़ौरन आता है हाँ यार आई नीड टू अपग्रेड माई फ़ोन, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत स्लो हो गया है। तो वो प्लान किया जाता है बेसिकली। सो इसी तरह गाड़ियों में भी जो है वेयर एंड टेयर इस तरह का रखते हैं कि अगले साल आपको और ज़्यादा लगे कि हाँ यार मुझे ख़रीदना है। सो मिशलिन केम आउट विद दिस आइडिया और उन्होंने रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया एक टायर की कंपनी ने। सो मैं यही सोच रहा था, इंडिया के तो खैर बहुत हैं मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ वेरी 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 डाइवर्स, तो the palette, the variety of palette that it offers is huge. Like South India एक अलग बॉल गेम है, बंगाल एक अलग बॉल गेम है, नॉर्थ इंडिया एक अलग है, पंजाब का बिल्कुल अलग है। बाय द वे जो बटर चिकन की आप बात करें वो इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट होती है और ऑफ कोर्स यूरोप में बिल्कुल डिफरेंट होती है। इट्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पैलेट्स। सेम गोज़ फॉर जो चिकन टिक्का मसाला, जो अगर यूके की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है, सो इट्स नॉट द पाकिस्तानी चिकन टिक्का मसाला, इट्स द इंडियन चिकन टिक्का मसाला जो उन्होंने वहाँ फेमस किया। और सो वैसे जनरली इंडियंस आर गुड एट मार्केटिंग। वी मे हैव अ गुड प्रोडक्ट बट वी आर नॉट गुड मार्केटर्स। ना हम अपने मुल्क के अच्छे मार्केटर्स हैं, हम अपने मुल्क को अच्छा नहीं बेच पाते, ना ही मुल्क की किसी अच्छी प्रोडक्ट। वी हैव नेवर मेड अ ब्रांड। खाड़ी एक आपको नज़र आ जाता है न्यूयॉर्क में और लंदन में और दुबई में, जे डॉट में नज़र आ जाता है, बट लाइक आप समझ रहे हैं मेरी बात, हमें ना वो ब्रांडिंग नहीं करने आती। शार्क टैंक अभी आया ना पाकिस्तान में, बहुत हद तक कोशिश की। बाय द वे शार्क टैंक पे एक पिच आई, उसमें वो बच्चा स्टफ़ टॉय बनाता है और उसने स्पंज बॉब एक रखा हुआ है। एंड आई वॉज वेटिंग टू सी कि कोई एक जज पॉइंट आउट करेगा कि बेटा स्पंज बॉब जो है ये डिज्नी का कैरेक्टर है या जिसका भी कैरेक्टर है व्हाटएवर, तो तुम कैसे बैठ के बना रहे हो, तो आईपी है, मतलब यू नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ये। नॉट वन जज पॉइंटेड आउट। आई वाज लाइक, मतलब दिस इज लाइक बेसिक कॉमन सेंस कि भाई तू कैसे बना रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कोई बंदा डेडपूल का बना के आ जाए, ठीक है, तो बंदा फ़ौरन बोलेगा ना भाई ये क्या कर रहे हो तुम। कोई एक्समैन का फिगर बना के आ जाए तो आप नहीं बना सकते ना, ये स्पाइडरमैन का बना ले तो आप बोलोगे भाई मार्वल डीसी के आप कैसे उठा रहे हो ये चीज़ें, ये तो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आप कैसे बेच रहे हो यहाँ पे। तो या सो हमें वो प्रोडक्ट बनाने नहीं आती उस तरह, ना उसको अच्छा मार्केट करना आता है। तो ये भी एक वजह है कि हमारा कुजीन डिस्पाइट इट्स रियली रियली गुड, इट नेवर रियली किक्ड ऑफ। दुबई में यू नेवर फाइंड अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन एनी ऑफ द मॉल्स, कहीं पे भी नहीं है। सवर्णा भवन आपको, मैं दुनिया के जिस मुल्क में गया हूँ सवर्णा भवन मुझे मिला है वहाँ पे, राइट। अच्छा सेम गोज़ फॉर, अब देखो चाय, द चाय कल्चर इज़ सो ह्यूज इन पाकिस्तान, कड़क चाय, राइट, कितने ढाबे हैं यहाँ पे। बट फिली एक बना और आज फिली 13 मुल्कों में है, लंदन में भी है, फिर फिली ने अपग्रेड भी किया है। सो फिली एक तो वो चाय ढाबा टाइप सीन है, बट देन देयर इज़ अ फिली सेलेक्ट, तो उसमें थोड़ा सा हाई एंड करके वही चने की दाल और पराठा थोड़ा सा हाई एंड करके अच्छी प्राइस पे बेच रहे हैं। सो इफ़ यू गो टू सिटी वॉक दुबई, गो टू सिटी फिली सेलेक्ट एंड यूल फील लाइक यार मैं एक अच्छी जगह बैठ के खाना खा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक चाय का ढाबा, यू नो, आपको एक फील आती है। तो इंडियंस आर गुड एट ब्रांडिंग एंड गुड एट मार्केटिंग। हम ब्रांड नहीं बना पाते। हमारा वही बारबेक्यू, क्या बारबेक्यू टुनाइट, वही शक्लें अंदर नज़र आ रही हैं, ना हम उसको दूसरी ऑडियंस से लेके जा रहे। एक रावी रेस्टोरेंट है सतवा पे, जहाँ पे बहुत गोरे आते थे किसी ज़माने में। आई थिंक समबडी हैड रिटन अबाउट इट लॉन्ग अगो, तो वो एक आइकॉनिक बन गया है। अब भी उसका खाना इट्स ओके, मगर ये कि उसके अलावा वी डोंट हैव एनी सक्सेस। हालांकि इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, अगर मिडल ईस्ट की बात करें जहाँ पे इतनी नेशनलिटीज़ होती हैं, वहाँ तो हम सक्सीड कर सकते थे, या फिर यूके में जहाँ पे हमारा इतना बड़ा फुटप्रिंट है। हमारे खाने का फुटप्रिंट क्यों नहीं है वहाँ पे। चिकन शॉप सबने खोली हुई है, लेकिन लाइक व्हाई डोंट वी हैव अ रेस्टोरेंट।
वो फिर इनहेरेंटली बेटा बात यहीं आ जाती है ना कि इस काम को तो काम समझते ही नहीं है। कुक जो है, जो हांडी बना रहा है, जो कढ़ाई बना रहा है, जो बिरयानी बना रहा है, वो तो खैर मजबूरी में उसको उसके पास कोई स्किल नहीं, मतलब उसके पास तालीम नहीं है मोस्ट लाइकली, और कोई और स्किल नहीं है, तो उसने जैसे जैसे करके खाना बनाना सीख लिया तो वो है। अब वो कलिनरी आर्ट्स के चक्कर में और वो छोटे से पुदीने का दाना यूं रख के और फिर यूं करके ये वाले काम हर कोई नहीं कर रहा। तो हॉस्पिटैलिटी में वैसे ही हम बहुत पीछे हैं। और देयर इज़ सम रियली गुड फूड इन लंदन, पाकिस्तानी फूड, मगर वही वाली बात है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही पता है। तो वहाँ जो आपको वही पाकिस्तानी नज़र आते हैं। एक जगह मैं कहता सारे ARY वाले बैठे हुए थे, मैं कह यार और लोग क्यों नहीं है इस इलाके में, बहुत नेशनलिटीज़ रहती हैं। मैं सड़क पे बाहर खड़ा हूँ तो हर कोई गुजर रहा है, सिख भी गुजर रहा है, हिंदू भी गुजर रहा है, गोरे भी गुजर रहे हैं, अंदर तो सारे पाकिस्तानी बैठे हैं। तो क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे उसको? खाना बड़ा मज़े का है। सो दैट्स ऑल्सो वन प्रॉब्लम कि अब आपने जितने बड़े बड़े नाम लिए हैं, मैं खाना खजाना का इतना बड़ा फ़ैन था यार। मैं उनके रेस्टोरेंट भी गया हूँ इन दुबई, वंडरफुल यार, क्या प्रेजेंटेशन और क्या ज़बरदस्त। तो वो सेलिब्रेट किया जाता है ना वहाँ पे हर आर्ट फॉर्म को। हमारे यहाँ एक तो वी मेक एवरीथिंग अ लाफिंग स्टॉक। अब जैसे आपके कज़न है, ये खुद कुछ नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में ना, ये अंडा भी नहीं बनाना आता होगा इनको, ये सुबह उठ के माँ की शक्ल देखते होंगे और फिर बड़े होकर बीवी की शक्ल देखेंगे कि वो कुछ करेगी तो हमारा गुजर बसर होगा। फजूल के बस यही हंसी मजाक करना। वो आपने एक क्लिप देखा है जिसमें देयर इज दिस ओल्ड अंकल और एक यंग लड़का है, और वो ओल्ड अंकल बहुत तमीज़ से उसको मतलब समझा रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता होगा। फिर देन ही एक्सप्लेन्स के बच्चे से पूछता है कि G10 कंट्रीज़ का पता है, G7 का पता है, G20 का पता है, आप पढ़े लिखे लगते हो, आप कॉलेज जाते हो। तो अंकल ने फिर पूरा समझाया, और फिर वही इंडिया और पाकिस्तान की एक बात ही तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया ने यहाँ पे देव मेड स्ट्राइड्स विच इज़ वाई दे आर इन G10 और G7 वगैरह वगैरह, राइट। तो आगे से वो लड़का क्या कहता है, अंकल की अगर शादी हो जाना तो अंकल के ये मसले, तो अंकल ने सीधा बोला भाई यही मसला है तुम लोगों का, तुम लोगों को हर वक्त का फजूल का हंसी मजाक चढ़ा हुआ है, मतलब सेंसलेस बात है। तो वही ना, ये फजूल की मैं बस कॉमेडी कर लूँ यार। द फैक्ट कि हमें इतनी शौक है कॉमेडी करने का, इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस क्यों नहीं है हमारे यहाँ? बस छुप के ही करनी है या चाय के होटल भी करनी है, भाई इतना शौक है स्टेज पे आके करें, नाम बनाएं, हम भी इंडस्ट्री देखें यार यहाँ पे क्या होती है। तो ये तो उन दूसरों की बातों में आप ना आए कि ये क्या कह रहे हैं। बाकी आपकी सोच अच्छी है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसी डिश बनाए आइकॉनिक जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पाकिस्तानी कुजीन को लोग जाने। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वो इंडियन कुजीन के अम्ब्रेला में ही छुप जाता है, जिस तरह हिमालयन सॉल्ट इंडियन अम्ब्रेला में छुप गया, पूरी दुनिया समझती है वो इंडिया से आता है जबकि वो पाकिस्तान से आता है। सिमिलरली कुजीन भी उस तरफ जा रहा है। स्पीकिंग ऑफ पंजाबी कुजीन, अभी हम बात कर ही रहे थे, आई डोंट नो इफ़ यू ट्राइड कुलचा किंग इन दुबई, डूड इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया, आई थिंक उसकी ओनरशिप चेंज हुई है या फिर उसकी रीब्रांडिंग हुई है। लाइक द वन कुलचा किंग आई यूज्ड टू रियली एंजॉय, वो करामा की गलियों में था ना, दिस वन इज़ ऑन द मेन रोड। ये डिफरेंट है, इसका लोगो भी डिफरेंट है। आई थिंक या तो चेंज हुई है मैनेजमेंट या फिर ब्रांड ही बेच दिया किसी को। बट दैट वन यूज टू बी मैन, मूली के पराठे वहाँ होते थे, सो फकिंग गुड, बहुत मज़े के होते थे। सो या यू गॉट टू ट्राई दोज थिंग्स। और ये जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ शेफ्स इतने वो क्यों नहीं हैं, हमारे यहाँ फिर वही एक मिसोजनी भी है कि ये तो औरतों वाला काम है, मर्द क्यों कर रहे हैं। हालांकि यार हर रेस्टोरेंट में जाओ मर्द ही शेफ़ होता है, मर्द ही कुक होता है। तो ये एक फजूल की एक बनाई हुई है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ सेलिब्रेटोरी, हम जिनको सेलिब्रेट करते हैं ना वो अजीब बोंगे लोगों को ही सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे लोगों को हम सेलिब्रेट वैसे ही नहीं करते। तो हमारा एक बहुत बड़ा डाउनफॉल की एक वजह ये है कि हमारी सेलिब्रिटी क्लास बहुत ही वाहियात और चीप है, क्योंकि पब्लिक भी चीप है। तो वो जैसी कौम वैसे सेलिब्रिटीज़, तो वहाँ से भी एक इनकरेजमेंट राइज़ होती है ना कि जब एक अच्छा इंसान सेलिब्रेट होगा तो लोग देखेंगे यार कि यार मैंने भी इस मकाम पे पहुँचना है कि लोग मुझे भी इज़्ज़त करें, मुझे भी जाने, मुझे भी पहचाने। लेकिन यहाँ आप जब देखते हो कि मशहूरी की वजह यह है कि हर टिकटॉक पे बीवी के सीने पे ऐसे हाथ लगाना है, वो आपके स्टार बनेंगे, तो फिर दूसरे भी यही करेंगे कि यार हमें भी यही करना है। इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ दिस टिकटॉकर जिसका पूरा टैलेंट ये है कि वो पानी की बोतल पीता है, बातें करता है
और फिर पेट को यूं यूं करता है और फिर पूरा पानी बाहर निकलता है. हिज एंटायर टिकटॉक इज दैट. एंड आई एम लाइक डूड यू नीड टू कम अप विद डिफरेंट थिंग्स. मतलब लाइक ये कब तक चलेगा. स्पीकिंग ऑफ अकाउंट्स, गेटिंग ऑफ टॉपिक, देखिए एक मैं आपको एज अ बिकॉज आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर मैं आपको एक टिप देता हूँ. आप कोई भी अकाउंट अगर बनाएं, चाहे वो आपका बिजनेस अकाउंट हो या आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर अकाउंट हो, कभी भी उसको स्पेसिफाई नहीं करें कि ये सिर्फ इस चीज़ का है. स्पेशली किसी लोकेशन के साथ स्पेसिफाई ना करें. फॉर एग्जांपल something.pk, जब आप .pk कर देंगे ना, देखें अगर तो ई कॉमर्स स्टोर है जो कि पाकिस्तान में ही चलना है तो समझ आता है. लेकिन अगर एक अकाउंट है, लेट्स से मीम्स हैं, तो अगर आप पीके करोगे तो फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे एक जगह. ये खैर मीम्स इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस. जैसे मैं आई केम अक्रॉस दिस ब्लॉगर, मेलबर्न की कोई खातून है, स्टोरीज ऑफ मेलबर्न समथिंग समथिंग मेलबर्न है उनके उनके अकाउंट का नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बट मैं ये सोचा था यार मेलबर्न में आप आज रहती हैं, कल को अगर आपको शिफ्ट होना पड़े सिडनी तो आपका तो अकाउंट पूरा बेकार हो गया. इतने सालों की जो आपने मेहनत की वो तो बेकार हो गई. या तो आप उसको करो देसी इन ऑस्ट्रेलिया, तो देन यू हैव द इंटायर ऑस्ट्रेलिया टू योरसेल्फ. फिर कल को आप पर्थ चले जाओ, एडलेड चले जाओ, ब्रिस्बेन चले जाओ, इट स्टिल रिमेन्स रेलिवेंट. व्हाट इफ़ यू मूव टू दुबई, फिर तो ऑस्ट्रेलिया भी बेकार हो गया. तो नाम ऐसा रखें कि वो आपको कैद ना करे. अगर आप ब्रांड खोल रहे हैं कोई, तो अगर आपने उसका नाम ही क्लोथिंग रख दिया, कल को फिर आपको ख्याल आया यार मैं इसमें एक्सेसरीज़ भी रख लेती हूँ या मैं इसमें बच्चों के खिलौने भी रख लेती हूँ, तो फिर वो क्लोथिंग वाला नाम पे बैठेगा नहीं, वो प्रोडक्ट नहीं बैठेगा. तो नाम हमेशा जेनेरिक रखें ताकि आज तो आप उसको एज अ लिमिटेड देख रहे हैं कि यार मैं तो ज़िंदगी भर कराची में रहा हूँ तो मैं कराची वाला. और व्हाट इफ माई लाइफ चेंजेस एंड आई एंड अप इन अनदर कंट्री और अनदर कॉन्टिनेंट, फिर कभी भी आप अपने बिजनेस का या अपने कंटेंट क्रिएटर अकाउंट का नाम रखें तो उसको किसी एक लोकेशन से स्पेसिफाई ना करें, तो फिर वो उस लोकेशन पे कैद होकर रह जाता है. अगर आप उसका नाम ही पाकिस्तान रखेंगे तो इंडियन देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा मेरे लिए इसमें क्या है. तो कीप इट ग्लोबल. दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो अपना होराइज़न बड़ा करें. मेलबर्न में ना फंस जाएं या दुबई में ना फंस जाएं या लाहौर में ना फंस जाएं. ये मुझे वैसे ही रैंडम एक बात याद आ गई तो मैं सोचा शेयर करूँ आपके साथ. खैर बेटा, कीप इट अप. और लोगों की बातें नहीं सुननी, ये फारिग लोग हैं. और आप एक बहुत अच्छी और यूनिक चीज़, यूनिक तो खैर नहीं है बट इट्स अ यूनिक परसूट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. सो कीप इट अप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप you end up making a Michelin star restaurant for Pakistan. और again we really need that. और यही चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें सॉफ्ट पावर में इस्तेमाल होती हैं और सॉफ्ट पावर एक बनता है. और यही चीज़ मैंने डिस्कस भी की थी विद इमरान खान साहब जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट की थी, जिसको उन्होंने अगले दिन फिर बोला लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहे थे. बट माई एंटायर पॉइंट वॉज, आई डोंट नो मेरी बात पे कह रहे थे किसको कह रहे थे, बट माई एंटायर पॉइंट वॉज कि थाईलैंड ने अपने डिफरेंट लेवल के शेफ्स दुनिया भर में फैलाया, उनको फंडिंग दी कि रेस्टोरेंट खोलो. टियर 1 हाई एंड रेस्टोरेंट खोलोगे लेमन ग्रास टाइप का, टियर 2 जो है ज़रा सतवा ऊद मेहता स्टाइल, और तीसरा स्ट्रीट फूड. ठीक है, ताकि हर लेवल का बंदा उसको एक्सेस करे. और जब वो थाई फूड खाएं वो बोले यार जब थाई फूड न्यूयॉर्क में इतना अच्छा मिल रहा है तो थाईलैंड में कितना अच्छा मिलता होगा. एंड देन दे एक्चुअली ट्रैवल. और फिर थाईलैंड हमने देखा कि इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना. Thai food is like one of the most sought after cuisines in the world. तो इसी तरह हुआ. तो ये होती है सॉफ्ट पावर. मगर फिर उन्होंने सॉफ्ट पावर को जोड़ दिया, पता नहीं कि जॉर्डन में मुशर्रफ साहब नंगी लड़कियां लेके जा रहे थे, एज इन के लाइक ब्यूटी पैजेंट्स में लड़कियां लेके जा रहे थे कि सॉफ्ट पावर होगी. अब वो उसको बात को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया. खैर पुरानी बात हो गई. लेकिन ये कि वी डेस्परेटली नीड अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आई थिंक पाकिस्तान को मैकेंजी को दे देना चाहिए या डेलॉयट को दे दें कि भाई यार इसकी ब्रांडिंग तो कर दो. एंड वाकई करना चाहिए. एंड दीज कंपनीज कंसल्ट अ लॉट ऑफ कंट्रीज. अमेरिका डेलॉयट से काम कराती है भाई, तो हम क्यों नहीं करा सकते. वी रियली नीड अ बिग मार्केटिंग प्लान. कि अब वो मार्केटिंग प्लान से फिर आप टूरिज़्म अट्रैक्ट करें, आप उससे FDI अट्रैक्ट करें, उससे आप कुछ भी अट्रैक्ट करें. बट द आइडिया इस कि भाई पाकिस्तान को लोग जाने, इस तरह ना जाने कि ये वो मुल्क है जहाँ से उसामा बिन लादेन मिला था, बल्कि इसलिए जाने कि यार वहाँ का ये अच्छा है या वो अच्छा है या आई हैव ट्रैवल्ड देयर वगैरह वगैरह. वी स्टिल नीड अ लॉन्ग वे टू गो बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ डिसीजन टू बी टेकन. आई होप समबडी टेक्स इट. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.